میری روح خدا میں مگن ہے، میری روح خدا میں مگن ہے، جاں میری نجات سے خوش ہے، جاں میری نجات سے خوش ہے، میرے سر کو اس نے بلند کیا، میرے سر کو اس نے بلند کیا، اب کون میرا ہے اس کے سوا، میری روح خدا میں مگن ہے، میری روح خدا میں مگن ہے۔ دیکھو غرور سے بچ کے رہنا، منتظر رہو۔ پھر ہم نے پرانے عہد نامے سے اس وعدے کو دیکھا اور سنا کہ خدا نے اپنے وعدے کو 3-4 انبیاء کے ذریعے دنیا پر ریویل کرایا تاکہ ہم اس وعدے کے مطابق اپنی زندگی ڈال سکیں۔ اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو یہ لکھا نہ جاتا، اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو لکھا نہ جاتا۔ اس مقدس کلام میں وہ باتیں مرقوم ہیں جو ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے، جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ضروری نہ ہوتی تو لکھا نہ جاتا۔ اسی کے ساتھ ہم نے پچھلی دفعہ یہ بھی سنا تھا خدا کے مقدس کلام میں سے، خدا یسوع مسیح نے کہا تھا ضرور ہے کہ روح اور سچائی، روح اور پانی اور روح سے پیدا ہوں، ضرور ہے کہ پانی اور روح سے پیدا ہوں۔ سو آج اس سلسلے کا یہ میسج ہے ملتا جلتا وعدے کے مطابق، اور آج اس میں سے ہم یہ سیکھیں گے کہ جب خدا نے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے سے کیا ہوگا۔ یسوع آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو اس وعدے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب وہ وعدہ پورا ہوگا تو کیا ہوگا۔ یہاں لکھا ہوا ہے رسولوں کے اعمال اس کی 1 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، جی پڑھیں بیٹا، رسولوں کے اعمال اس کا 1 باب اس کی 8ویں آیت۔ پیچھے ہم نے پڑھا خدا کا پاک روح وعدہ ہے، اور وعدہ تھا خدا کے پاک روح کا، اور آج ہم دیکھیں گے اور اس میں سے پڑھیں گے اور سنیں گے کہ وہ جب نازل ہوگا روح تو کیا ہوگا۔ جی لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ ان کو دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ آمین۔ اور اسی کو ہم اگر لوکا کی انجیل اس کے آخری باب کی 49ویں آیت میں پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہے، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے تم اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ 2 جگہ پر 2 حوالوں میں ہم نے خدا کے زندہ کلام میں سے سنا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، یعنی باپ کا جو وعدہ ہے جب وہ پورا ہوگا تو تمہیں ایک لباس ملے گا۔ کیا ملے گا؟ لباس ملے گا۔ اور لباس کون سا لباس ہے؟ قوت کا لباس۔ کون سا لباس ہے؟ قوت کا لباس۔ اور دوسری جگہ ہم نے رسولوں کے اعمال اس کے 1 باب اس کی 8ویں آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ کسی بھی بات کی سچائی کے لیے، کسی بھی بات کی تصدیق کے لیے 2 جگہوں پر ہونا لازمی ہوتا ہے۔ 2 جگہوں پر جب ایک ہی بات لکھی جائے تو اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ سچائی ہے۔ اس لیے ہمیشہ 2 گواہوں کی گواہی کو قبول کیا جاتا ہے۔ ایک گواہ نہیں، کتنے ہوتے ہیں ہمیشہ؟ 2 گواہ۔
सो खुदा के कलाम में 2 जगह लिखा है तुम कुव्वत पाओगे। एक जगह लिखा है कुव्वत का लिबास, जैसे हम लिबास पहनते हैं हमारे बदन को वो ढांक लेता है और फिर वो नजर आता है। इसी तरह दूसरी जगह लिखा है तुम कुव्वत पाओगे। इन दोनों अल्फाज को हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से सीखते हुए इसके साथ आगे बढ़ेंगे। इसमें लिखा है और आगे लिखा तुम मेरे गवाह होगे। आज मैं बताऊंगा कि ये गवाह कैसे होते हैं, ये गवाह कैसे होते हैं। ये जो वादा है ये यूल की किताब में से, जैसे हमने पिछली दफा सीखा, उसके 2 बाब और उसकी 27 आयत का वादा है। कुव्वत पाओगे यानी क्या पाओगे? तुम ताकत पाओगे, तुम जोर पाओगे, तुम कुदरत पाओगे। तुम्हारे अंदर, तुम्हारी रूह में, तुम्हारी इस जिंदगी में, इस रूहानी मसीही जिंदगी में ऐसी काबिलियत, ऐसी सलाहियत, ऐसा अख्तियार होगा जो आसमान की बादशाह से तुम्हें मिलने वाला है। ये इख्तियार, ये कुव्वत, ये कुदरत, ये सलाहियत, ये काबिलियत जमीन से नहीं मिलती। जमीन की बादशाही के पास ये कुव्वत नहीं है। जमीनी बादशाही, जमीनी तालीम, जमीनी किसी कॉलेज से या किसी यूनिवर्सिटी से या किसी दुकान से या किसी बड़ी दौलत से या किसी बहुत जायदाद से या किसी बड़े बाप का होना या किसी बहुत बड़े ओहदे पर होने से ये काबिलियत, ये इख्तियार और ये सलाहियत नहीं मिलती है। ये कुव्वत, ये कुदरत सिर्फ और सिर्फ खुदा के पाक रूह के सबब से है। और ये क्यों जरूरी है? खुदा के कलाम में लिखा है वो कुदरत और वो कुव्वत, वो कुदरत जो जमीनी जिंदगी में, पहली बात क्या है? गालिब आने वाली है। क्या है? गालिब आने वाली है। वो कुदरत, वो वसाइल जो मुदाखलत तो करते हैं, जमीनी इख्तियार, जमीनी कुदरत, जमीनी कुव्वत, जमीनी ओहदे मुदाखलत तो करते हैं, लेकिन जब वो कुव्वत मुदाखलत करेगी उसके सबब से जमीन के वसाइल, जमीन की जिंदगी में जितने इख्तियार हैं, जितने वसाइल हैं, जितने हुकूमती मशीनरी सारे वसाइल हैं, इन सब पर वो गालिब आने वाला इख्तियार है। हालेलुया। वो कौन सा इख्तियार है? गालिब आने वाला इख्तियार है। जमीन की कुव्वत, जमीनी बादशाही, जमीनी कुदरत और जमीनी रियासती मशीनरी, वो अबलीस के सारे वसाइल, उन पर ये सारी कुव्वत इख्तियार रखेगी। क्या रखेगी? इख्तियार रखेगी। और ये कुव्वत, ये कुदरत तमाम गैर मादी, तमाम रूहानी निजाम से जोरावर, गालिब, बाख्तियार, और ये ऐसी आसमान की बादशाही कुदरत है जिसके सामने हर घुटना झुक जाएगा। आमीन, हालेलुया। ये कुव्वत ऐसी तबाहकुन कुदरत है। यहाँ पर जो लफ्ज लिखा है वो डूनामिस लिखा है, जिनसे लफ्ज डायनामाइट बनता है। डायनामाइट क्या करता है? तबाह कर देता है ना, बर्बाद कर देता है। इस तरह उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ डूनामिस, जिसका मतलब है ऐसी कुव्वत है, ऐसी तबाहकुन कुदरत है जो अबलीस के लिए, बीमारियों के लिए, बुदरूहों के लिए लानतों को बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। ऐसा ही हुआ, ऐसा होता आया है और अब भी हो रहा है। जो काम दुनिया के इख्तियार में, दुनियावी साइंस से, दुनियावी तालीम से नहीं होता, मेरे खुदावंद के पाक रूह से हो जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया है। और ऐसी कुव्वत तुम पाओगे, ऐसी तुम्हारे अंदर सलाहियत आ जाएगी, ऐसा इख्तियार तुम रखोगे जिसके सबब से तुम जमीन पर बैठकर जो चाहोगे वो आसमान पर खुदा तुम्हारे लिए कर देगा। जो तुम कहोगे आसमान से, वो वहां से हुक्म जारी हो जाएगा। हालेलुया। ऐसी कुव्वत पाओगे, ऐसी कुदरत पाओगे जिसके सबब से आसमान खुल जाएगा और तुम जो कुछ जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बन जाएगा। ऐसी कुव्वत पाओगे, ऐसी कुदरत पाओगे जिसके सबब से बंधन खुलेंगे, कमजोरियां जाएंगी, मोजज़ात होंगे, बीमारों को शिफा मिलेगी और उसके सबब से रूहें जीती जाएंगी और खुदा की बादशाही वसत पाएगी। ऐसी कुव्वत, ऐसी कुदरत जो दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए होगी। क्या होगी? दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए होगी। और लेकिन एक बात है, जोर आपको मिलेगा,
कुव्वत आपको मिलेगी, कुदरत आपको मिलेगी, लेकिन इसका इस्तेमाल आपकी मर्जी से नहीं होगा। इसका इस्तेमाल आपकी मर्जी से नहीं होगा। आप इस्तेमाल होंगे, आप उसमें आएंगे, खुदा जब चाहेगा, जिसको चाहेगा उसके लिए, क्योंकि वो कुदरत उसकी है, जोर उसका है, वो इसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेगा। हम कभी कभी चाहते हैं फलां मरीज ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक नहीं, क्योंकि क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी मर्जी नहीं है। हम चाहते हैं फलां मौजज़ा हो जाए, लेकिन मौजज़ा वो नहीं, क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी मर्जी नहीं है। सो कुव्वत है, कुदरत है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने वाला भी वो है जिसकी ये कुव्वत है, ये उसकी मर्जी से इस्तेमाल होती है। लेकिन इसका इस्तेमाल करने वाला भी वो है, और हर शख्स में इसका असर पैदा करने वाला भी पाक खुदावंद है। इसलिए ये खुदा की मर्जी से इस्तेमाल होता है, खुदा की मर्जी के बगैर इस्तेमाल हालेलुया, खुदा की मर्जी के बगैर ये कुदरत इस्तेमाल नहीं होगी। फिर लिखा है तुम जाओगे, क्या करोगे? तुम जाओगे यरूशलेम में जाना, यहूदिया में जाना, और फिर उसके आगे लिखा हुआ है कि तुम सामरिया में जाना, बल्कि आगे लिखा है जमीन की इंतहा तक जाना और मेरे गवाह बनना। क्या बनना? मेरे गवाह बनना। बहनों भाई, यहाँ एक अजीब सी बात है, जिस तरह वो कुव्वत कुदरत आपकी मर्जी से नहीं, उसकी मर्जी से इस्तेमाल होती है, इस तरह गवाही भी अजीब गवाही है। ये गवाह कौन से गवाह है? अजीब गवाह है। कैसे? दुनियावी लिहाज से जब किसी भी जगह पर गवाह पेश किए जाते हैं, मेरी बात गौर से सुने, जब गवाह पेश किए जाते हैं तो गवाह के कह देने से कि वो कह देता है मैंने ये देखा है, मैंने ये सुना है, मेरे सामने ये हुआ था, फलां वक्त हुआ, फलां जगह हुआ। और फिर दूसरा गवाह आता है तो वो कहता है हाँ जी ये मेरे सामने हुआ, मैंने देखा, फलां वक्त और फलां जगह हुआ। और दो लोगों की जब गवाही आपस में मिलती है तो उसको ऑथेंटिक मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? उसको उसकी तस्दीक हो जाती है, उसको सही मान लिया जाता है। लेकिन ये गवाही उस तरह की नहीं है, ये गवाह ऐसे नहीं है। जिस लफ्ज से तर्जमा हुआ है उसका मतलब है ऐसे गवाह जो ना सिर्फ जुबान के कहने से, ना सिर्फ देखने से, ना सिर्फ लिख के देने से, बल्कि ये वो गवाह हैं जो अपनी जिंदगी से साबित करेंगे कि जो कुछ कहा गया है वो सच है। अपनी जिंदगी से साबित करेंगे कि जो कुछ कहा गया है वो सच है। इसका मतलब ये है, क्या खुदा के कलाम में जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे, और कुव्वत पाकर जब तुम दुनिया में जाकर ये मनादी करोगे यीशु जिंदा है, तो इसका तुम्हें सबूत देना पड़ेगा। अगर तुम कहोगे कुदरत है उसकी, इसका तुम्हें सबूत देना पड़ेगा। जब तुम कहोगे उसके सबब से मुर्दे जिंदा होते थे, तुम्हें अपनी जिंदगी से सबूत देना पड़ेगा। जब तुम कहोगे बीमारियां जाती है, तुम्हें ये करके दिखाना पड़ेगा। जब तुम कहोगे कि उसके सबब से इब्लीस भागता है, तो तुम्हें अपने अंदर कुदरत के सबब से क्या करोगे? साबित करके दिखाना पड़ेगा। जबकि आम हालात में ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। इसलिए लिखा है तुम कुव्वत पाओगे, और एक जगह लिखा तुम क्या करोगे? कुव्वत का लिबास होगा, कुव्वत का लिबास होगा। मतलब क्या है? गवाह तुम मेरे हो, लेकिन गवाह ऐसे हो जबानी खाली खुली कहने से ये गवाही सच साबित नहीं होगी। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसको करके दिखाना पड़ेगा। क्या करेगा? करके दिखाना। इसलिए जब हम खुदा के कलाम में मरकस की इंजील में जाते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, फिर वो आखिरी बाब मरकस की इंजील का 16 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है, और उसने उनसे कहा तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले
वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान मौजे होंगे। तुम कुव्वत पाओगे तो ये काम होंगे। सबूत है कि ये क्या है, ये सबूत है। और वो सबूत क्या है? वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। बदरूहें इस जमीनी इख्तियार में अबलीस के गलबे में है, अबलीस के वसाल हैं, अबलीस इनको इस्तेमाल करता है। कोई भी बदरू किसी भी बहुत बड़े यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके आप नहीं निकाल सकते हैं। किसी भी बदरू को आप बहुत बड़े ओहदे पर रहकर निकाल नहीं सकते हैं। किसी भी बदरू को बाज़ तालीम हासिल करके आप नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहे उम्र के किसी हिस्से में भी हैं, अगर आप खुदा के रूह से भरे हुए हैं, आपके पास ओहदा है या नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, आप यूनिवर्सिटी में गए हैं या नहीं गए हैं, जब आप यीशु के नाम कहेंगे, क्या यीशु मसीह नासरी के नाम में? क्यों? क्योंकि आप उस पर ईमान लाए हैं। क्या है? आप उस पर ईमान लाए। जब ईमान लाए हैं तो सारा अख्तियार बादशाही का आपको मुंतकिल हो गया है। हालेलुया। जब आप ईमान लाए हैं, इसलिए ईमान लाने के लिए बपतिस्मा लाजमी करार दे दिया गया। क्या? बपतिस्मा लाजमी करार दे दिया गया। और जब बपतिस्मा लाजमी करार दे दिया गया, उसके सबब से हम दाखिल हो गए। किस में दाखिल हो गए? खुदा की बादशाही में। जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। आगे लिखा है, जब तक वो पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल। खुदा की बादशाही में दाखिल होने का मतलब ये नहीं किसी कार में दाखिल नहीं। खुदा की बादशाही में दाखिल होने का मतलब है क्या? उस इख्तियार में दाखिल होना, उस कुदरत में दाखिल होना, उस निजाम में दाखिल होना, उस वसाइल में दाखिल होना जो बादशाही के लिए। और शिगिर्द ने जब खुदावंद के कलाम के मुताबिक इन बातों पर अमल किया तो बादशाही वसाइल आसमान से उनके लिए क्या हो गए? मुतहर्रक हो गए। हालेलुया। वो जहां जाते हैं खुदावंद की मनादी करें। जहां जाते कलाम लिखा है, खुदा उनके साथ साथ रहकर, आगे पढ़ेंगे, खुदा उनके साथ साथ रहकर कलाम को पूरा करता रहा। लिखा है, हम जो पढ़ा, और वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, अगर को हलाक करने वाली चीज पिएंगे, उन्हें कुछ जरर ना पहुंचे। तुम्हें कुव्वत का लिबास मिलेगा। तुम क्या करोगे? जरर। तुम सांपों को, सांप की फितरत है, सांप की क्या है? फितरत है। सांप क्या करता है? वो डस लेता है, उसके अंदर जहर है, और वो जहर क्या होता है? इंसानी बदन में दाखिल हो जाता है, और इंसानी बदन में दाखिल होकर मौत का सबब बन जाता है, बीमारी का सबब बन जाता है। लेकिन जब कुव्वत का लिबास मिलेगा तो सांप आपको डसने ना पाएगा। और इस सांप को इब्लीस से भी तशबीह दी गई है। जब आप कुव्वत का लिबास पहन लेंगे, जब आपको कुव्वत का लिबास मिलेगा, जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा, जब रूह कुदस से तुम कुव्वत पाओगे, कुदरत पाओगे, तो क्या होगा? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, क्या इब्लीस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। इब्लीस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे खुदा के कलाम में वो नई नई जबानें बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नई। दुनिया में जितनी जबानें हैं वो सीखनी पड़ेगी, लेकिन ये जिसका जिक्र हो रहा है, गैर जबान का, वो सीखनी नहीं पड़ती। दुनिया की सारी जबानें इस जिंदगी में जिस्मानी तौर से सीखी जाती हैं, लेकिन खुदा के कलाम में ये रूहानी नेमत है। कौन सी नेमत है? रूह की नेमत है। और ये खुदा के कलाम में आगे जाकर हम इसको सीखेंगे फिर कि खुदा इसके सबब से बरकत देता है। और आखिरी बात लिखी है, और वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। आप जानते हैं खुदा ने तजर्बा दिया है, बहुत सारे लोगों को खुदा ने बीमारियों को ठीक किया है। खुदा ने आपके सदना से खादिम को भी इस्तेमाल किया है। हालेलुया। आप जानते हैं। और वो किस सबब से होता है? पाकरू के सबब से। ये सब के लिए है, सिर्फ एक पादरी के लिए नहीं, पास्टर के लिए नहीं है, ये सब के लिए। हर शख्स जो यीशु पर ईमान रखता है, उसके अंदर 4 मौजज़े होंगे जब रूह कुदस उस पर नाज़िल होगा।
ہم گرے ہوئے ہیں بیماری اور بدروؤں میں. کیوں؟ ہم کلام کو سمجھتے نہیں ہیں. اگر سمجھتے تو اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. ہم مشنوں کے اس میں گردام میں پھنسے ہوئے ہیں. نہ ہم بپتسمہ لیتے ہیں. اگر بپتسمہ نہیں لے لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم خدا کے پاک روح کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں. اپنے آپ کو خدا کو پیش نہیں کرتے ہیں. خدا یسوع نے جب کہا، پچھلی 21 تاریخ کو وہ دن منایا گیا ہے، عید سعود کہتے ہیں اسے، کہ خدا مسیحا جو تھا وہ آسمان پر کیا ہوا؟ چڑھ گیا، آسمان پر چلا گیا. آج سے 10 دن پہلے، 8 دن پہلے، 2-3 دن پہلے ہے، اور عید پینتیکوست سے 10 دن پہلے وہ دن گزر گیا ہے. 21 تاریخ کو، میرا خیال 21 تاریخ کو تھا. اور اس میں یسوع مسیح اٹھایا گیا. اس نے کہا تم ٹھہرے رہو. اور شاگرد 10 دن تک اپنے کمروں سے نہیں نکلے ہیں. انہوں نے کہا ادو ہی نکلنا ہے جدو پاک روح اسی کی کرنے ہیں سارے کر لیے. او ضروری نے، اے ضروری نہیں ہے. جس بات کو ہم اہمیت دیتے ہیں ہمارے لیے وہی ہوتا ہے. خدا ان کے لوگوں، خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے. ہم کمزور ہیں، ہم بیمار ہیں، ہم برکت نہیں ہے. روحانی طور پر برکت نہیں ہے، اور مادی طور پر اس طرح برکت نہیں جس کا یہاں وعدہ کیا گیا. وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ خدا کے کلام کے مطابق ہم نہیں چل رہے اس طرح جس طرح ہمیں چلنا چاہیے. اس لیے ضرور ہے کہ آنے والے اتوار کو عید پینتیکوست کا دن منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں. اور 31 تاریخ کو اس دن خدا کا کلام پورا ہوا تھا. اور صبح 6 بجے سے صبح کے ٹائم یہ ہوا جو ہم وقت منا رہے ہیں. اس وقت خدا کے کلام میں ابھی نہیں، اور تھوڑی دیر بعد 9 بجے کے قریب خدا کا بندہ پطرس کہہ رہا ہے ابھی تو پہر دن چڑھا ہے. کتنا دن چڑھا ہے؟ ابھی تو جو خدا کا پاک روح صبح نازل ہوا تھا. ہاللیلویہ. اور اگلے اتوار کو آپ بھی آئیں، دوسروں کو بھی لے کر آئیں، انہیں بتائیں آج کے دن پاک روح نازل ہوا تھا. آپ اپنے گھروں میں جائیں، یہ ہفتہ خداوند کے ساتھ گزاریں. خداوند کے روح کے نزول کے لیے، اپنی زندگی میں داخلت کے لیے، اپنی زندگی میں آنے کے لیے خدا سے دعا کریں، روزے رکھیں. کیونکہ خدا کے کلام کے مطابق ضرور ہے کہ ہم روح سے پیدا ہوں. یسوع نے کیا کہا ہے؟ ضرور ہے کہ روح سے پیدا ہوں. میں سوالے کو پڑھ کے پھر ہم بند کریں گے. یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب ہے جہاں پر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. اس کو ہم پڑھیں گے. وہاں لکھا ہے، تیسرا باب اور اس کی 6 آیت ہے، جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے، جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے. تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سر سے پیدا ہونا ضرور ہے. نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. جو ہم پیدائش ہوئی ہے ہمیں جسمانی ہے، اس لیے ہماری اب روح سے پیدائش ہونا لازم ضروری ہے. خدا آپ سب کو اس کلام کے سبب سے بڑی برکت دے. آمین.